class. So let us assume we have three cities. Okay, Hazaribagh, Ranchi, and Dhanbad. Okay, and we have two fruits, mango and oranges. Mango will be denoted by M and orange by O. Now we have to start journey from any of these places, Hazaribagh, Ranchi or Dhanbad, and end at a particular destination. So we can represent this like a city by a circle. Okay, and for any city, movement for M or O, that is mango or orange, is needed to be defined. Fine. So tell me, if we want to start journey from Hazaribagh, is there any need of any symbol that we are going to start the journey from Hazaribagh? Yes. ये तीनों सिटीज हैं हमारे पास, तो कोई सिंबल होना चाहिए. Let us assume we mark an arrow that we are going to start the journey from Hazaribagh. Okay, and suppose our destination is Dhanbad. So again we have to mark some symbol that okay, we are going to reach Dhanbad. Okay, so just we are making this, that this is going to define as our destination. Okay, now connection must be there so that we can move. True or not? And what? Yes, and what we are going to take? Mango and orange. Fine. Suppose this arrow indicates that we are going from Hazaribagh to Ranchi with a particular fruit, and that fruit is mango. So we are representing what? M as a mango. So upon this fruit, the destination from Hazaribagh to Ranchi is reached. Okay. Now, if you are having only orange, you have to remain in Hazaribagh. Suppose this condition is there. Now, if you are having orange at Ranchi, you are coming at Hazaribagh. So what should we put here? M or O? O. Very good. Now, if you are having mango at Ranchi, then you remain at Ranchi. So arc is labeled by what? M or O? M. Fine. Now, if you are having orange at Ranchi, you are going to Dhanbad. So here it is going to be labeled as M or O? O. O. Fine. Next, if you are having mango at Dhanbad, you are again going to Ranchi. So it should be labeled as, okay. And if you are having orange at Dhanbad, you are coming to Hazaribagh. So it is labeled as O. Fine. Now, if you are having some sequence like this, M, O, M, O, M, mango, orange, mango, orange, mango, ठीक है.
Or if I ask, you have to start journey from Hazaribagh. After following these sequences, where you are going to reach. ठीक है, तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे जर्नी? हजारीबाग से. सो एम, तो यहां से हम लोगों ने सपोज एच से हजारीबाग को रिप्रेजेंट कर देते हैं अपॉन रीडिंग दिस सीक्वेंस. तो फर्स्ट सिंबल क्या है? एम है ना. बताइए कहां जा रहे हैं एम पे? रांची. ओके फाइन. सो आर से रिप्रेजेंट कर दिया रांची को. नेक्स्ट सीक्वेंस में सिंबल क्या है? ओ. ओ पे अगर देखें तो ओ पे रांची से कहां जा रहे हैं आप? हजारीबाग और धनबाद दोनों. तो यहां पे क्या हो जाएगा सीक्वेंस? यहां पे हजारीबाग का एच भी हो सकता है या फिर यहां धनबाद का डी भी हो सकता है ना. ठीक है. नेक्स्ट अगला क्या सीक्वेंस है बताइए? सीक्वेंस में अल्फाबेट क्या है? एम है ना. नाउ यहां से भी हम लोग मूव कर सकते हैं और यहां से भी मूव हो सकता है. तो एच से जब आप पहुंचे एम पे कहां जा रहे हैं? ठीक है, यहां रांची हुआ और यहां धनबाद से भी रांची की बात हुई. नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है यहां सीक्वेंस में अगर बात करें तो? ओ है ना. ठीक है. तो अगेन ओ पे आपने अभी देखा क्या? यू आर हैविंग टू चॉइसेस. दिख रहे हैं कौन कौन से? हजारीबाग एंड अगेन हजारीबाग एंड धनबाद. नेक्स्ट एम की अगर बात करें, लास्ट सीक्वेंस में आपका जो सीक्वेंस है अल्फाबेट्स की अगर बात करें तो क्या हुआ? एम. सो यू आर हैविंग दिस एंड इन ऑल दीज 4 केसेस यू आर गोइंग टू रीच. कहां आप पहुंच रहे हैं? फाइन. तो ये सीक्वेंस आपको मिला ना. लेकिन हमारा एम क्या था? धनबाद पहुंचना. लेकिन इसमें तो किसी सीक्वेंस में आपको मिला कि आप धनबाद पहुंच पा रहे हैं. ठीक है. फाइन. अब ऑब्जर्वेशन आप देखो ध्यान से. इसकी अगर बात करें, इस डायग्राम की बात करें तो इसमें आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं. यू हैव डिफाइंड सर्टेन सिटीज. ठीक है. आपने देखा है सर्टेन मूव्स, कुछ सिंबल्स रख दिए जिससे क्या है मूवमेंट हो रही है. दूसरी चीज आपने जो देखी वो क्या है कि यूनिकनेस नहीं है. You find that if you are at Ranchi and you are receiving O, you can either go to Hazaribagh or you can go to Dhanbad. ये आपने देखा. तो मतलब क्या है? यहां यूनिकनेस नहीं है. ओके. नेक्स्ट फाइनल को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो? डबल सर्कल जो आपका डेस्टिनेशन है. और इनिशियल को क्या आप रिप्रेजेंट कर रहे हो? एक एरो लगा दे रहे हो कि यहां से आपको यात्रा प्रारंभ करनी. यू हैव टू स्टार्ट जर्नी फ्रॉम हियर. ओके. नाउ सपोज इफ वी आर मेकिंग दिस एज एन यूनिक वन. ये हमने हटा दिया. तो क्या ये अब यूनिक है? ट्रांजिशन हर एक सिंबल पर देखो. इफ यू आर एट हजारीबाग and you are reading O, then you are remaining at Hazaribagh. No other transition. If you are reading M, then you are going to Ranchi. Again, if you are having M at Ranchi, then you are going to Ranchi itself or you are remaining at Ranchi. And if you are having O, then you are going to Dhanbad. Okay. Again, same is the case with Dhanbad. M, after M, reading M,
you are going to Ranchi, and after reading O, you are going to Hazaribagh. O, Hazaribagh. Can we represent this by a table? क्या टेबल से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक तरफ क्या रखेंगे? सिटीज, and next is what? Like here we can represent cities, and if you are reading M or if you are reading O, then you can move. तो स्टार्टिंग आपका क्या है? कहां से जर्नी स्टार्ट करनी थी? हजारीबाग से, रांची एंड धनबाद. ओके, we can represent, if you are reading M, then you are going to Ranchi. If you are reading O, you are remaining at Hazaribagh. Again, if you are at Ranchi reading M, you are remaining at Ranchi. If you are reading O, then you are going to Dhanbad. If you are having the city as Dhanbad reading M, then you are going to Ranchi, and if you are reading O, then you are going to Hazaribagh. फाइनल के लिए क्या कर सकते हैं? यहां पे एक सर्कल बना सकते हैं. So this thing is known as transition table. ओके, ट्रांजिशन टेबल है. एक सिटी से दूसरे सिटी बता रहे हैं साइमल्टेनियसली अपॉन रीडिंग समथिंग, और ये समथिंग क्या है? इनपुट है. ओके, स्टार्टिंग प्लेस, दिस इज कॉल्ड इनिशियल स्टेट. ओके, एंड डेस्टिनेशन, दिस इज कॉल्ड फाइनल स्टेट. ओके, सो कैन वी समराइज? क्या क्या चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी यहां पर? अगर एक ट्रांजिशन में आपको रिप्रेजेंट करना हो तो क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेंगी? एनीवन बताइए. इनिशियल स्टेट, वेरी गुड. नेक्स्ट, इनपुट. ओके, नेक्स्ट, फाइनल स्टेट. यस, और कुछ चीजें हैं? यस, हो जाएगा. ये आप इनिशियल और फाइनल स्टेट तो बता रहे हैं, फाइन, लेकिन स्टेट्स भी तो होने चाहिए जिसमें से हम लोग क्या करें, ये बता पाए कि ये इनिशियल स्टेट है या फिर फाइनल स्टेट है कि नहीं? yes. तो क्या होना चाहिए? स्टेट्स का भी ग्रुप होना चाहिए. यहां पे क्या है? हजारीबाग, रांची एंड धनबाद. ओके, अब ये आपके पास है, स्टेट्स है, इनपुट है, इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट है. लेकिन अगर ये एरो मार्क नहीं रहे, सपोज इफ यू आर नॉट हैविंग दिस ट्रांजिशंस, कैन वी रीच एनीवेयर? नहीं. मतलब ये जो ट्रांजिशन टेबल है, ये भी जरूरत है ना. ट्रांजिशन टेबल को अगर आप ध्यान से देखो, ये सिटीज को हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टेट्स की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना. ठीक है, हर एक रो को आप ध्यान से देखो. ठीक है, जस्ट कंसीडर दिस रो. यू आर हैविंग अ पार्टिकुलर सिटी. अपॉन रीडिंग अ पार्टिकुलर सिंबल, you are reaching at a particular city, है कि नहीं? सेम चीज यहां पे है. you are at a particular city, upon reading O, you are reaching at a particular city. ठीक है,
ध्यान से देखें, ये सेम चीज यहां हो रही है कि नहीं? सिटी, सिंबल, सिटी, अगेन सिटी, सिंबल, सिटी। तो इसको हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं क्या? यू आर हैविंग वन एलिमेंट फ्रॉम स्टेट, हो रहा है ना? और एक एलिमेंट कहां से आ रहा है? सिंबल से, जो आपका क्या है? इनपुट है। और उसके बाद आप कहां जा रहे हो? एक पार्टिकुलर स्टेट पे। ट्रू और नॉट? You are reading one state, one input symbol, and according to this table, you are going to a particular state. ठीक है? तो अब इसको क्या हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं? एनीवन? आपको क्या चाहिए? स्टेट्स चाहिए ना रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? फाइनाइट नॉन एम्प्टी set of states. Okay, next, input alphabet. This is going to be denoted by sigma. Finite non-empty set of input symbols. Okay, next आपने देखा ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन टेबल किस तरह से मैप हो रहा था? स्टेट input is mapping into what? State, and this is denoted by delta. Okay, so delta is going to represent what? Transition function, and it is also known as direct transition function. What it is mapping? Q cross sigma to Q. Okay, so third element is what? Delta. नेक्स्ट इनिशियल स्टेट की बात की थी ना, तो दिस इज डिनोटेड एज Q नॉट एज द इनिशियल स्टेट. फाइन. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट is final states. So final state is what? Subset of Q, denoting the accepting state, and we are analytically representing one finite automata, and basically we are talking about deterministic finite automata. Okay, so you are having 5 tuple. इसमें 5 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं. क्या क्या? Q, sigma, delta, Q naught and F. Q naught is the initial state belonging to Q. So अब आप मुझे बताओ, ये मैंने जो लिखा है F can be subset of Q, तो फाइनल स्टेट क्या एक ही होगा या ज्यादा हो सकता है? फिर से ध्यान से देखो, F is subset of Q. ठीक है, तो मतलब क्या है? इसमें मल्टीपल स्टेट्स क्या हो सकते हैं? एक्सेप्टिंग या फाइनल स्टेट हो सकते हैं. बट Q नॉट belonging to Q is the initial state. So if we are talking about finite automata and deterministic or non-deterministic जो भी automata की बात करें, in this case only one initial state is going to prevail. ठीक है, ये क्लियर हुआ? चलिए अब आप रिवाइज करके बताओ मुझे वापस,
5 टपल्स क्या क्या हैं? यस, पहला नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट सिग्मा, नेक्स्ट डेल्टा, नेक्स्ट क्यू नॉट एंड नेक्स्ट इज एफ। फाइन। चलिए अब मैं यहां से इस स्क्रीन को हटा देता हूं। नाउ डेल्टा, डेल्टा के विषय में बताइए। टेल मी अबाउट डेल्टा। डेल्टा क्या है? यस, equal to not, it is mapping into q. Okay, q cross sigma mapping into q. Okay, fine. चलिए अब एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे कई बार एग्जामिनेशन में भी आया क्वेश्चन, गेट में भी पूछा है। फाइन, आप लोगों को सारे को आंसर मालूम है, जस्ट लिसन इट केयरफुली एंड सी इट केयरफुली। ओके, इवन और ऑड नंबर सबको मालूम है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर अगर नहीं है कुछ तो क्या हो गया? इवन, और रिमाइंडर है तो ऑड हो गया, ठीक है। तो सपोज इवन और ऑड के कॉम्बिनेशंस की अगर बात करें, दो हमारे पास इनपुट सिंबल हैं ए और बी, ठीक है। तो ए और बी के कॉम्बिनेशंस की अगर बात करें तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये आप देखिए ध्यान से। इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज हो सकता है एक कॉम्बिनेशन, जहां दोनों क्या हो जाएं? इवन हो जाएं। ओके, कहने का अर्थ क्या है कि एक पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं जहां कुछ इस तरह की बात हो रही। नंबर ऑफ एज क्या है इसमें? इवन, और नंबर ऑफ बीज क्या है? इवन। ओके, और इसको सपोज हम लोग एक स्टेट के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन। अब आप अगर इसमें एक ए ऐड कर देते हो, ठीक, ध्यान से पहले देखो और फिर बताना। अब इस सीक्वेंस में अगर एक ए ऐड हो जाता है, सपोज आपके पास सीक्वेंस ये था ए फॉलोड बाय बी बी, और आपके पास एक ए और ऐड हो गया, तो अब क्या होगा? इसमें चेंज क्या होगा बताओ? ये जो आपका गुड, तो हम लोग यहां पहुंच गए हैं ऑड नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज, ठीक है। अगेन इसको भी एक स्टेट बना सकते हैं हम लोग, ठीक। अब सपोज फिर से आपको एक ए और मिल गया, अगेन यू रीड वन ए मोर, देन क्या होगा चेंज इसमें? इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज, तो ये तो यहां हम लोगों को दिख रहा है ना स्टेट, इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? यहां से एक आर्क बनाया और यहां पे क्या लिखना होगा बताओ? ए या बी? ए, वेरी गुड। अब आप यहां पे पहुंचे हुए हो जहां क्या है? नंबर ऑफ एज ऑड है और नंबर ऑफ बीज क्या है? इवन है। फाइन। अब अगर आप यहां तो ए रीड कर चुके, अगर बी रीड करते हो तो क्या होगा बताओ? इफ यू आर रीडिंग बी हियर, आप किस स्टेट में है? इस पे जहां पे क्या है? ऑड नंबर ऑफ एज हैं और इवन नंबर ऑफ बीज हैं। कहने का अर्थ ये है, यहां पे आपके पास जो सीक्वेंस था, ठीक है, यहां देख लो एक बार, जो हम लोगों का करंट सिचुएशन है कुछ इस तरह का है कि ए बी बी ए, odd number of A's and even number of B's. Now you are going to read one B.
तो क्या चेंज होगा? व्हाट यू आर गोइंग टू रीड? इस सर्कल में क्या रखेंगे बताइए? ए में कोई चेंज होगा? यस और नो? So we are talking about this thing, that you are having odd number of A's and you are having even number of B's. So after reading one more B, what you are having? At which? Very good. So you are at the place odd number of A's and odd number of B's. Okay. Now, if you again read one B, what happens? Even number of B's and odd number of A's. तो ये स्टेट पहले से है कि नहीं? तो यहां पे क्या करेंगे? यहां पे B मार्क कर दिया. ओके. Now, if you are having, again you are at this state and you have already traveled with B. So which symbol is remaining? A. तो अगर आप यहां पे हैं जहां पे ऑड नंबर ऑफ एज और ऑड नंबर ऑफ बीज हैं, तो आप किस स्टेट पे जाओगे बताओ? क्या चेंज हो? इवन नंबर ऑफ एज एंड ऑड नंबर ऑफ बीज. कोई स्टेट है क्या इसमें, इन तीनों में? तो मतलब एक नया बनाना होगा ना. तो क्या होगा? इवन नंबर ऑफ एज एंड odd number of B's. अगेन एक ये नया स्टेट बन गया. यहां पे पहुंच कैसे रहे थे? अपॉन रीडिंग ए. वेरी गुड. अब सपोज आप इस स्टेट पे हो तो आपने ए रीड किया, तो क्या चेंज होगा इसमें? तो ये कहीं स्टेट है, ये स्टेट ऑड नंबर ऑफ एज एंड ऑड नंबर ऑफ बीज. ओके. तो यहां पर क्या आपने कर दिया? ए कर दिया. ओके. नाउ अब आप इस स्टेट पे हो, ए का आपने ट्रांजिशन देख लिया, अब बी रीड करते हो, तो बी रीड करने पे क्या होगा बताओ? ऐसा कोई स्टेट है? इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज. तो मतलब क्या हुआ? यहां जा सकते हैं. सपोज इफ यू आर हैविंग एट दिस स्टेट even number of A's and even number of B's and you encounter with one B, what happens? ये स्टेट है ना. ओके फाइन. नाउ you have to start journey at somewhere. You are making this as an initial state. Fine. And if you are going to accept those strings in which even number of A's and even number of B's are there, तो फाइनल जो आपका डेस्टिनेशन है वो यही स्टेट होना चाहिए ना, जहां पे आपको क्या मिले? इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज मिले. तो इसे हम लोग क्या करेंगे? फाइनल स्टेट बना सकते हैं. कैसे? डबल सर्कल से. ओके. नाउ सपोज इफ आई आस्क ए ए बी बी ए, अगर ये है आपके पास इनपुट दिया गया है ये कॉम्बिनेशन ए ए बी बी ए, तो
क्या ये एक्सेप्ट होगा? क्योंकि हम लोग किस पे एक्सेप्ट करने वाले हैं, इसमें इवन नंबर ऑफ एज हो और इवन नंबर ऑफ बीज हो। इसमें बताओ ए की संख्या कितनी है? हाउ मेनी एज आर देयर? 3, which is odd. And how many bees are there? So even it should not be accepted by this machine. होना चाहिए ना ऐसा? तो चलिए थोड़ा इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको आप भी कॉपी पेन लेकर बैठे हो कि नहीं? फाइन। ये जो स्टेट है इसको नाम दे दो Q0, इस स्टेट का नाम दे दो Q1, इस स्टेट का नाम दे दो Q2 और इस स्टेट का नाम दे दो Q3। ओके, सभी लोग अपने नोटबुक पे इस स्ट्रिंग को प्रोसेस करके बताइए कहां पहुंचे। यू हैव 1 मिनट। ए बी बी ए। नहीं, आप सभी स्ट्रिंग बना लो, सारे लोग हैं। ओके, होप सो सभी ने कर लिया होगा। यस और नो? Now, if we want to write the sequence, you have to start the processing from the initial state, and initial state is denoted by this arrow. Initial state is what? Q0. Upon reading A, you are going to Q1. Next, after reading A, you are again coming to Q0. Next, after reading B, you are coming at Q3. Next, reading B, you are again at Q0. Next, after reading A, you are going to Q1. Q3 or Q1? Q1. You are at Q0 and you are reading at this symbol A. So after reading this, you are reaching at Q1. ओके, तो अब आपको ये देखना है कि Q1 जो है क्या ये फाइनल स्टेट है या नहीं है। क्या नहीं है तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दिस स्ट्रिंग इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। बट अगर सीक्वेंस में ये नहीं रहता, जस्ट ए बी बी रहता, तो आपको कहां पहुंचना था? ये पोजीशन नहीं रहता आपके पास। यू आर रीचिंग एट व्हाट? Q0, एंड Q0 इज द फाइनल स्टेट। तो मतलब क्या हो जाता है? इफ यू आर हैविंग इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज, देन यू आर रीचिंग एट द फाइनल स्टेट। ये जरूरी नहीं कि ए पहले हो बाद में हो, वॉट एवर द सीक्वेंस इज, ए बी। यस, बोलिए, नहीं पहुंच रहे हैं? कोई सा भी सीक्वेंस हो, irrespective of the sequence, if you are having even number of A's and even number of B's, then you are going to reach at the final state. Fine. तो एनालिटिकली इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो 5 टपल में? M is equal to what? Q sigma delta Q0 and F। फाइन। बताइए Q यहां क्या होगा? फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स क्या है? Q0, Q1, Q2 and Q3। ओके,
नेक्स्ट इनपुट अल्फाबेट क्या है? A and B. Next, initial state is what? Q naught itself. And final state F is the set having Q naught as the final state. ये डिनोशन ध्यान से देखिए. We are representing it as a set having only element Q naught. Now you can represent delta. आप डेल्टा किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो ट्रांजिशन डायग्राम से, ट्रांजिशन टेबल से और ट्रांजिशन फंक्शन डायरेक्टली यू कैन रिप्रेजेंट. तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट डेल्टा. ओके, डेल्टा पहला ये आपको मालूम है कि डेल्टा इज द मैपिंग बिटवीन Q क्रॉस सिग्मा इंटू Q. तो यहां पर क्या होने चाहिए? दो एलिमेंट होने चाहिए ना. पहला आर्गुमेंट कहां से आएगा बताओ? नहीं, फर्स्ट एलिमेंट विल कम फ्रॉम विच सेट? Q एंड सेकेंड सिग्मा. तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं. Q नॉट A and Q naught B. It will be at which state? बताइए कहां जा रहा है? Q1 और B पे कहां जा रहा है? Q3. Again delta Q1A delta Q1B. Q1A पे कहां जा रहा है? Q naught and Q1B Q2. Delta Q2A and delta Q2B. A पे कहां जा रहा है? Q2 Q3 and B पे कहां जा रहा है? Q1. Fine. Last is the Q3. So Q3A and Q3B. बताइए कहां गया? Q3A रीड कर रहा है तो कहां आ रहा है? Q2. और B रीड किया तो कहां आ रहा है? Q naught. So this is another representation of what? Transition function. 5 tuple रिप्रेजेंटेशन हो गया ना. अगर टेबल के माध्यम से रिप्रेजेंट करें तो आपको मालूम है यहां पे क्या लिखेंगे? स्टेट लिखेंगे और यहां पे इनपुट सिंबल लिखेंगे. स्टेट Q0, Q1, Q2 and Q3. Initial state is represented by putting an arrow before the state and final state is represented by making a circle around the state. Okay, here initial and final state both are same, so you are going to mark like this, initial and final symbol. Okay, you can populate the value. A और B पे सारा वैल्यू आप पॉपुलेट कर सकते हो. Okay, now if we ask, suppose you are having a string in which no symbol is there, what will happen? कोई सिंबल नहीं है तो क्या होगा? बताइए. तो आखिर हमको सपोज आंसर देना है कि आफ्टर प्रोसेसिंग द स्ट्रिंग आई एम गोइंग टू रीच एट समवेयर. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? सेम हो सकते हैं या होंगे? एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो जाएगा. तो यहां पे क्या वो परमिसिबल है? व्हाट इज नल स्ट्रिंग? स्ट्रिंग हैविंग लेंथ 0. फाइन. तो क्या वो एक्सेप्ट होना चाहिए इस क्वेश्चन में? यस,
because we have designed the DFA or the machine finite automata accepting what? Even number of A's and even number of B's. We can represent this that we are having 0A and 0B. Concatenating this thing, we are going to get lambda or epsilon or cat symbol, that is what known as empty string, and this string is also going to be accepted. Fine. Now write down a question. सभी लिखिए. Design a deterministic finite automaton in which the strings having odd number of A's and odd number of B's are going to be accepted over the alphabet. Sigma is equal to AB. ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो क्या स्ट्रिंग, कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी? ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी क्या? ए बी बी ए, तो ये एक्सेप्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए. So you are going to say that if this string is there, AB, okay, you are going to accept it. तो क्या हम इसी डायग्राम से कुछ चेंज करके ये ऑटोमेटा बना सकते हैं कि नहीं? फाइन. तो क्या चेंजेस करना होगा? आप लोग दोनों के अलावा और कोई बोले. I will ask अभिनव, क्या करना होगा बताइए? Q2 को इनिशियल और फाइनल स्टेट बनाना होगा. क्या जरूरी है कि Q2 को इनिशियल स्टेट बनाएं? सपोज हम बना देते हैं Q2 को इनिशियल स्टेट, ठीक है, और इसको हटा देते हैं. देखिए अभिनव, क्या होगा? ये हमने इनिशियल और फाइनल बना दिया इसको Q2 को. फाइन. व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? एग्जैक्टली. समझे अभिनव? नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा, तो इसका अर्थ ये हुआ you are going to accept even number of A's and even number of B's, which is not the question. Question was asking what? You have to accept odd number of A's and odd number of B's. कोई इनिशियल जैसे ही बनाया तो क्या हो जाएगा? वो आपका नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो जाएगा. तो एक यहाँ इंपॉर्टेंट आपको मिल गया इनसाइट. इफ यू आर मेकिंग initial as the final state, you are accepting what? null string. ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि if initial state is also final state, which of the following string is definitely going to be accepted. तो कौन सा स्ट्रिंग है वो? null string. वेरी गुड. तो क्या चेंजेस किए उस डायग्राम में? अगर बात करें, we have made only one change, that this final state has been made as non-final state, and this one, the Q2, has been made as what? Final state. ठीक है.
तो इस डायग्राम से आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज, या फिर ऑड नंबर ऑफ एज इवन नंबर ऑफ बीज, ऑड नंबर ऑफ एज odd number of bees, even number of A's, odd number of bees. You can design any of these. डन, अटेंडेंस वाला कर लिया आप लोगों ने? ओके, केवल नाम और रोल नंबर लिखना था आपको। फाइन। ओके फाइन। तो ये 2 टर्म आज हम लोगों ने बार बार यूज किया ना, स्ट्रिंग एंड अल्फाबेट, है ना? ये आपको याद है, सिग्मा, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स। बस क्या है? अल्फाबेट इज व्हाट? फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स, एंड स्ट्रिंग इज व्हाट? फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रिंग इज व्हाट? फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट. Suppose if you are having A, B as a input alphabet, then you are going to have A, B, B, A as an string, but this is not the string. A, B, B, dot, dot, dot. Means what? You have to be make sure that the sequence must be finite. Okay, so finite sequence of alphabet is known as a string. Alphabet, finite non-empty set of symbols. Okay, और हम लोगों ने एक चीज देख ली, Q, सिग्मा, डेल्टा, Q नॉट, F. अब सबके माइंड में होगा नहीं ये? Q is what? Finite non-empty set of states. Finite non-empty set of symbols, sigma. Delta is the transition function mapping Q cross sigma into Q in case of deterministic finite automata. We have seen the example of deterministic finite automata, and we call it as a deterministic because यूनिकनेस वॉज देयर, है ना? एक स्टेट, एक सिंबल, आप एक ही स्टेट पे जा रहे थे, लेकिन जो सबसे पहला एग्जांपल देखा था उसमें क्या था? यूनिकनेस वॉज नॉट देयर, और जहां यूनिकनेस नहीं हो उसे हम लोग कहते हैं NDFA, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, विच वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट क्लास. DFA हम लोगों ने देखा, Q क्रॉस सिग्मा इंटू Q. Q naught belonging to Q is the initial state, and F subset of Q is what? Final state. तो एक चीज और हम लोगों ने देख लिया कि Q naught, अगर we are talking about DFA or NFA, only one state is going to be the initial state, but there may be many states as a final state. ठीक है, मोर देन वन कैन ऑल्सो बी द फाइनल स्टेट. ये चीज क्लियर है? बट इन बुक यू कैन सी दैट दिस एरो इज गोइंग टू बी प्लेस्ड एट मल्टीपल प्लेसेस, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी कॉल्ड एज फाइनाइट ऑटोमेटा, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन सिस्टम. ऐसा हो सकता है जहां आपके पास क्या हो? मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स हों, तो उसे हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? ट्रांजिशन सिस्टम कहेंगे, बट नॉट द फाइनाइट ऑटोमेटा. इन केस ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा देयर मस्ट बी ओनली वन स्टेट विच इज द इनिशियल स्टेट. ये चीज क्लियर है?
अगर इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट हो जाए तो एक हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन देखा, null string is going to be accepted by that finite automata. ओके, ये सारी चीजें माइंड में आ गई ना। अब इसके लिए अलग से ये नहीं ना कहना पड़ेगा कि फिर से रिवाइज करेंगे तो याद होगा।